नमस्ते, सदा खुश रहिए बिटिया। माई सेल्फ जीवन मिस्टर कन्हैयालाल नागर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस and methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture class for BSc Agriculture Honors 6th semester. This my subject Post harvest management and valuation of fruit and vegetables. Student, I am discuss about preparation of candy and preserve. So let's start your topic, preparation of candy, fruits and vegetables. Define a fruit and vegetables impregnated with cane sugars, glucose syrups and subsequently drained free of syrup and dried is known as candy fruit and vegetable. The most suitable fruits for candies are avla, karunda, pineapple, cherry, papaya, apple, peels of orange, lemon, grapes, fruit and ginger, etc. The FPO specification for candied fruits are TSS 75%, total sugar 70% and reducing sugars 25%. जो इसके कैंडी फ्रूट्स होता है उसमें TSS की जो मात्रा है 75% TSS, टोटल शुगर 70% एंड जो रेड्यूसिंग शुगर है वो 25%। इसके बेसिस पे होना चाहिए FPO, फूड जो फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेस के बेसिस पे। इसमें बताए जो कैंडी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें जो ड्राइड फ्रूट होते हैं, शुगर्स की जो मात्रा होती है वह फ्रूट्स के ऊपर एक ड्राइड फ्रूट के रूप में कवरिंग होता है। आगे, द प्रोसेस फॉर मेकिंग कैंडिड फ्रूट एंड प्रैक्टिकली सिमिलर टू फॉर प्रिजर्व। द ओनली डिफरेंट इज दैट द फ्रूट्स impregnated with syrups having a high percentage of sugar 75 bricks. The syrup left over from the candied process can use for candied another batch of same kind of fruits after suitable dilution. For sweetening chutney and sauce and pickles and vinegar making. Last, preparation of crystal fruits and vegetables. Discuss candied fruits and vegetables coated with the crystal of sugar either by rolling in finely powdered sugars or by allowing sugars crystal from dense syrups to deposit on them are called crystal fruits vegetables. The candied fruits are placed on wire mesh tray which is placed in a deep vessel cooled syrup about 70% TSS is gently poured over the fruit so as to cover it entirely. The all mass is left undisturbed for 12 to 18 hours, during which a thin coating a crystallized sugar is formed. The tray is then taken out carefully from a vessel and surplus syrups dried off. These syrups are then placed in a single layer on wire mesh tray and dried at room temperature or about 49 degrees centigrade in dryers. Preparation of glazed fruit vegetables. इसका जब हम ग्लेज्ड फ्रूट्स होते हैं उसको हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। द कवरिंग ऑफ कैंडिड फ्रूट्स वेजिटेबल विद ए थिन ट्रांसपेरेंट कोटिंग ऑफ शुगर which impart them a glossy appearance is known as glazing.
Cane sugar and water 21 by weight are boiling in steam pan at 113 to 115 degrees centigrade, and the scum is removed as it comes up. Thereafter, the syrup is cooled to 93 degrees centigrade and rubbed with the wooden ladle on the sides of pan. Degranulated sugars is obtained. Dried candied fruits are passed through its granulated portion of a sugar solution one by one by means of fork and the placed on tray in warm dry room. They may also be dried at 49 degrees centigrade fill on 2 to 3 hours. When they become crisps, they are packed in a tight container for storage. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ प्रिजर्व. जो प्रिजर्व को हम कैसे प्रिपरेशन तैयार करते हैं प्रिजर्व की. ए मैच्योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 8 पीस impregnated with very sugar syrups till it become tender and transparent is known as preserve. That is avla, apple, pear, mango, cherry, carunda, strawberry, pineapple, papaya, carrots, etc. can be used for making preserve. According to FPO, Food Product Organization, specification for preserve is TSS, total soluble solids कितना होना चाहिए 68 bricks and fruit pulp 55% according to FPO. And general consideration, cooking of food directly in syrup causing the shrink of fruit and reduce absorption of sugars. Therefore, the fruit should be blanched first to make it soft enough to absorb water before steeping in syrup. However, high GO fruits might cook directly. Fruit might be cooked in syrup by these process. 3 process as given below. यहाँ पे जो 3 प्रोसेस दी गई हैं कुकड के आधार पर. फर्स्ट है रैपिड प्रोसेस. द फ्रूट आर कुकड इन लो सुगर सिरप बॉइलिंग इज कंटिन्यूस. इसमें जो रैपिड प्रोसेस हैं रैपिड प्रोसेस के अंदर हम जो कुक करते हैं सिरप्स को, ये लो शुगर सिरप के बेसिस पर काम करती हैं, जिसके अंदर हम बॉइलिंग करते हैं कंटिन्यू प्रोसेस. द जेंटल हीटिंग अंटिल द सिरप बिकम द सफिशिएंटली थिक सॉफ्ट फ्रूट सच एज स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स which require very little boiling for softening. Unlike hard fruits like apple, pear and peach which require prolonged heating. ऐसे फ्रूट्स जैसे पियर, एप्पल, पीच, ऐसे फ्रूट्स के लिए लंबे टाइम के लिए हीट की ज़रूरत होती है. एंड रैपिड बॉइलिंग शुड बी हावियर टू अवॉइड एज द मेकिंग टू फ्रूट टच especially when the heating is done the large shadow pan with only small quantity as syrups. ऐसे फ्रूट्स के लिए हम एक शेडो फैंस के फॉर्म पर ये क्वांटिटी की जो सिरप्स होती हैं स्मॉल क्वांटिटी सिरप रखते हैं. एंड फाइनल कंसनट्रेशन ऑफ शुगर शुड नो बी लेस देन 68%. 68% से कम फाइनल के अंदर जो मेजर चलती है फाइनल में, इसका 68% से कम शुगर्स नहीं होनी चाहिए. विद कॉरस्पॉन्ड्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 106 डिग्री सेंटीग्रेड. जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड होना ज़रूरी है. दिस इज़ द सिंपल एंड द चीप प्रोसेस बट फ्लेवर एंड कलर ऑफ प्रोडक्ट आर लॉस्ट कंसिडरेबल यूजिंग बॉइलिंग. लेकिन इस जो प्रोसेस हैं रैपिड प्रोसेस हैं, इससे मेन 2 ही लॉस होता है इसका. फ्लेवर्स जो कलर्स होता है जो प्रोडक्ट का, वह धीरे धीरे इसका लॉस होता जाता है. इसके बाद है स्लो प्रोसेस. द फ्रूट इज द ब्लांच अंटिल इट बिकम सॉफ्ट शुगर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्रूट्स.
इसमें बताया जो ब्लांचेस जो प्लांट फ्रूट्स होता है ये एक तरह से बीकम बन जाता है सॉफ्ट। द शुगर इक्वल द वेट, जो फ्रूट्स का जितना वेट होता है उतनी उसमें शुगर को ऐड करते हैं। इस देन दी एड इज द फ्रूट इन द अल्टरनेट लेयर, और इसमें अल्टरनेट फॉर्म के रूप में एक लेयर बनाते हैं। एंड द मिक्स अलाउ विद द स्टैंडर्ड फॉर, फिर इसके बाद में उसको मिक्स कर देते हैं 20 मतलब 24 घंटे के बीच में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द fruit give out water and the sugar go into solution, resulting in the syrup containing 37 to 38% THCs. Next day the syrup is boiling after removal of fruits is raised to strength about 60% THCs। जो उसका जो THCs होता है मेन फॉर जो THCs की होती है जो 60% THCs होना ज़रूरी है। इसके बाद में बताएंगे ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिट्रस एसिड, जो इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी होती है साइट्रिक एसिड की अबाउट 1 to 1.5 ग्राम पर केजी शुगर्स की बेसिस पर इज आल्सो एडेड एंड इनवर्ट पोर्शन ऑफ दी केन शुगर्स एंड दस प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद दी ऑलमोस्ट देन बॉइलिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट्स होता है ये कितना होना चाहिए 4 to 5 मिनट के लिए। एंड कीप फॉर 24 आवर्स, फिर इसके बाद उसे 24 आवर्स के लिए रखा जाता है, 24 घंटे के लिए इसको रखा जाता है। ऑन थर्ड डेज स्टैंड सिरप्स एंड रेज अबाउट, इसकी जो सिरप्स जो रेंज होती है इसकी 65% THCs बाय बॉइलिंग, जो बॉइलिंग करते हैं बॉइलिंग के आधार पर इसको 65% तक THCs रखा जाता है। इसके बाद में फाइनल जो स्ट्रेंथ चलती है सिरप की उसमें 70% THCs एंड फ्रूट आर द लेफ्ट इन द 1 वीक। इसके बाद प्रीजर इज नाउ रेडी एंड इट पैक इन कंटेनर्स, दिस मेथड इज यूजली प्रैक्टिस। इसके बाद ये कंटेनर्स के अंदर पैक किया जाता है। वैक्यूम प्रोसेस, द प्रोसेस इज द फर्स्ट सॉफ्टनिंग एंड बाय बॉइलिंग एंड देन प्लेस इन सिरप, इट शुड बी 30 to 35% THCs। द फ्रूट सिरप blend in then transparent a vacuum pan and concentrate under reduced pressure to 70% THCs। Preserve made by the process retain the flavor and color of fruits better than the often method। जो वैक्यूम प्रोसेस होती है इसके अंदर जो दोनों मेथड्स हैं उससे सबसे बेस्ट फ्लेवर्स और इसका जो फ्लेवर्स कलर्स होता है सबसे बेटर होता है इस मेथड्स के अंदर। इन ऑल दे प्रोसेस दी फ्रूट्स दे कीप कवर विद सिरप से, जो ये ऐसी इस प्रोसेस के अंदर हम फ्रूट्स को कवर करते हैं सिरप से ड्यूरिंग दी कुकिंग के समय एज वेल दी आफ्टरवर्ड, अदरवाइज विल ड्रिप इट ड्राई अप एंड, इसके बाद में इसको हम ड्राई कर देते हैं। कवरिंग करने के बाद जो कुक करते हैं कुकिंग के समय पर सिरप उसमें कवरिंग करते हैं, इसके बाद उसे ड्राइंग करते हैं। लास्ट प्रोसेस में ड्राइंग करते हैं, द प्रोडक्ट विल बी अफेक्टेड। इसके बाद में लास्ट बात करते हैं प्रोसेस, जो प्रोसेस इसकी जो फ्लो चार्ट है इसका प्रिजर्व का। फर्स्ट में हम सेलेक्ट करते हैं मैच्योर फ्रूट्स को, सेकंड में हम वॉशिंग करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट में प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट्स फॉर शुगर ट्रीटमेंट, नेक्स्ट कीपिंग फ्रूट्स एंड शुगर्स इन अल्टरनेट लेयर। इसके अंदर हम जब फ्रूट्स रखते हैं शुगर्स के साथ अल्टरनेट लेयर में, उसमें 1 kg फ्रूट्स को 1 kg शुगर्स के साथ रखा जाता है। इसके बाद रिमूवल ऑफ फ्रूट्स, इसके बाद इंक्रीजिंग कंसिस्टेंसी ऑफ सिरप्स, जो इसके अंदर 60% THCs रखा जाता है बाय बॉइलिंग ऑफ फ्रूट फॉर ए डेज। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रिपीटिंग द प्रोसेस एंड रेजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिरप्स बाय 5% THCs टू 70% और अल्टरनेट लेयर। इसके बाद बात करते हैं स्टिपिंग इन 70% THCs फॉर 1 वीक एंड इसके बाद लास्ट में फ्रीजर के बाद हम करते हैं ड्राइनिंग के बाद में हम फिलिंग करते हैं जार में कंटेनर्स के अंदर
इसके बाद हम कवरिंग करते हैं विथ प्लस फ्रेशी प्रिपेयर शुगर सिरप से, जिसका जो THS होता है 68%। इसके बाद सीलिंग करते हैं। सील करने के बाद सील करते हैं किसे, एयर टाइट फॉर्म में, और इसके बाद स्टोरेज करते हैं। थैंक यू।